And welcome to my YouTube channel KV Physics 11. Today I am going to discuss laws of motion, that is the Newton's law of motion. In this video I will discuss first two laws of motion, that is the Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and related concepts and definitions. Although you have already studied these laws in class 9th, but here you will see more application, more numerical problems based on these laws, and especially on Newton's second law of motion. And these applications are very important for examination point of view. So we remain in this video up to the end, and you will be able to understand these laws properly. Although about the application I will discuss in next coming videos. Here first of all I will discuss about few definition and especially about the force. You have already studied about the force also in lower classes. Force is an external effort in the form of push or pull. You have studied, and you can improve your definition by adding some effect of force in this definition. So what are the effect of force? You know, that is the force can make the object in motion, or you can say force can start the motion in an object if it is in the rest position. Force can also increase or decrease the moving speed of the moving object. Force can also change the direction of moving object. On these effects of force we can define the force. How we can define? Just you can see. Force is an external effort that causes or trying to cause the motion in an object at rest. Here we have considered one of the effect of the force. Similarly, you can take another effect of force. How? The force is an external cause, external effort in the form of push or pull, which increases or decreases the speed of moving object. Or you can say force is an external effort which changes or try to change the direction of the motion of object. So in this way you can define the force. I have already noted down these definitions by taking the one of the effect of force, that is the force is an external effort in the form of push or pull causing or trying to cause. आपको कहना है causes or trying to cause the motion in an object at rest. क्योंकि फोर्स हम लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, अब वो चेंज हो या ना हो वो अलग बात है ना. तो दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल कॉजिंग और ट्राइंग टू कॉज द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. Similarly, you can take another effect of force. Force is an external effort in the form of push or pull which changes or try to change the speed of moving object. Similarly, third effect डायरेक्शन वाला है, तो उसमें लेंगे the force is an external effort in the form of push or pull which changes or try to change the direction of the moving object. So in this way, if you take any one of the effect of the force, you can easily define the force. And broadly, force is divided into two categories. One is known as contact force, another are non-contact force. So non-contact forces are also known as distant forces. They are applied from a distance. No physical contact is necessary in non-contact forces. For example, gravitational force, magnetic force, electrostatic force, etc. are the non-contact force. So in these forces no physical contact is necessary between two objects. So similarly we can define the distant forces
a non-contact force. The forces acting between two or more objects are said to be distant forces if they do not require the physical contact between them. Gravitational force between two bodies, magnetic force, electrostatic force. We can easily observe that the earth attracts the object toward itself. No physical contact is necessary. Similarly, a magnet attracts the iron towards itself. No physical contact is necessary. So similarly, we can also define the contact force where contact is necessary. If one is applying the force on another body, then physical contact is necessary. Contact force. The force acting between the two or more objects are said to be contact force if they do require the physical contact between them. तो यहाँ पर बॉडी फोर्स लगाएगी तब जब उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा, तभी वो फोर्स अप्लाई हो सकते हैं. जैसे कि हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करें, हमने अपनी मसल से अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करें, तो जरूरी है कि हम उस बॉडी को हाथ से टच करेंगे तभी फोर्स लगा पाएंगे. दूर से हम फोर्स नहीं लगा सकते. तो मस्कुलर फोर्स जो है वो क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स. एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मोशन करने जा रही होती है, तो क्या होता है, उन टू बॉडीज के सरफेसेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको कि हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. एंड दैट फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन which is going to start. Suppose an object is placed on the surface and a force is applied. This is the surface and a block is placed on this surface. Force is applied force trying to move this object. Now the contact force, that is the frictional force, will develop between two surfaces in contact which opposes the motion. So this frictional force is a contact force. So the contact force will always be there if there is a contact between the two objects. Similarly, normal reaction and spin force, these are also the example of contact forces. Now I will discuss the effort made by the Galileos in order to explain one of the property of the object, that is called inertia. He did certain experiment, and on the basis of those experiments he defined a property, you can say inherent property of the body, which is called inertia. First, I will discuss the experiment done by the Galileos, and as a conclusion, he stated about the property of inertia. First of all, he took an inclined plane and he placed a ball on the top of the inclined plane. Now he observed ball is rolling downward and its speed increases. Here force is acting, that is the gravitational force is acting, and it is acting in the same direction in which the object is trying to move. So its speed is going to increase. Now when he pushed the object ball up the inclined plane, now he observed the speed of the ball goes on decreasing as it moves up. So here again same force is acting, and which is acting opposite to the direction of the motion. That is why its speed is going to decrease. Now he simply rolled the object on the horizontal plane and concluded
he given an argument that this object pushed on a plane surface will continue to move with the same speed if there is no any external force acting on it. तो यहाँ पर क्या था, बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी तो फोर्स लग रहा था और उसी डायरेक्शन में लग रहा था जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी। सेकंड केस में बॉडी जो है डीएसेलरेट हो, मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज हुई थी, तो क्योंकि उसका जो है फोर्स जो लग रहा था उस पर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। अब यहाँ पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, प्लेन हॉरिजेंटल है, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है कंटिन्यू मूव करनी चाहिए इफ इट इज इन मोशन। तो इन दो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूजन दिया। हाँ, इन सभी एक्सपेरिमेंट में क्या कंसीडर किया गया है, फ्रिक्शन जो लगता है रियलिटी में वो 0 होना चाहिए, तभी ऐसा ऑब्जर्वेशन हम 100% जो है पाएंगे। या कहें हम जो फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं कि बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम फ्रिक्शन को भी रिमूव कर दें। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम आर्गुमेंट तो दे सकते हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट उनका था जो कि डबल इंक्लाइंड प्लेन पर था। तो पहले उन्होंने क्या किया, डबल इंक्लाइंड प्लेन लिए विद सेम इंक्लिनेशन। ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, इधर भी थीटा एंगल है, इधर भी थीटा एंगल है, और उन्होंने एक बॉल को यहाँ से सर्टेन हाइट से रिलीज किया, और यदि मान लें कि फ्रिक्शन नहीं था तो क्या हो रहा था कि दिस बॉल रोल डाउन एंड ट्राइंग टू रीच अप टू द सेम हाइट ऑन द अनदर इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर उसी हाइट तक पहुंच रही थी। अब उसके बाद उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया विद लेस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन। इसका θ1 कर दिया और यहाँ पर θ1 जो है वो लेस देन θ लिया, और बॉल को सेम हाइट से रिलीज किया। देन ही ऑब्जर्व दैट द बॉल रोल डाउन एंड इट ट्राइंग टू रीच अप टू द सेम हाइट एज इट डिड इन द फर्स्ट experiment, but here the distance moved by the ball is more. This distance A to B distance is more in comparison to distance traveled by the ball in the first case. यहाँ तो वो सेम हाइट पे पहुंच रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो थे प्लेन्स के वो दोनों सेम थे। यहाँ पर जब सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है डिक्रीज कर दिया गया तो देखा गया कि बॉल इज ट्राइंग टू रीच अप टू द सेम हाइट। इन ऑर्डर टू डूइंग सो द बॉल इज कवरिंग मोर डिस्टेंस ऑन द सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि यदि हम सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजेंटल कर दें बिल्कुल, तो क्या होगा, बॉल को हाइट से रिलीज करेंगे, इट विल मूव डाउन एंड trying to reach up to the same height, but there is no height found, so this ball will move forever. तो इस बेसिस पे उन्होंने देखा और अपना ऑब्जर्वेशन दिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने देखा कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में भी नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 लगता है, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी क्या होता है कि नेट फोर्स जो है 0 ही होता है। यानी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उस पर लगने वाला मोशन फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 ही होना चाहिए, तभी वो जो है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। यदि नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो क्या होगा, या तो वो एक्सेलरेट होगी या डीएसेलरेट होगी, है ना, या तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो कंटिन्यू सेम स्पीड से मूव करे, इसके लिए जरूरी है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस तरह से बॉडी की रेस्ट पोजीशन, बॉडी का रेस्ट में होना या बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन में होना, दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि दोनों केसेस में जो नेट फोर्स लगता है वो 0 ही होता है। तो इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी की बात की, वो थी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, और उन्होंने दिया गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो कंक्लूजन था वही कंक्लूजन
जो है नोन एज गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, net external force is zero, a body at rest continue to be rest and a body in uniform motion continue to move uniformly along the same straight line। तो ये कब होगा? जब जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में along द सेम स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। और ये जो प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये क्या बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी के अंदर खुद से आई हुई प्रॉपर्टी है, खुद से गेन की हुई प्रॉपर्टी है। तो अब हम बात करेंगे कोई प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है, वो क्या है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यही प्रॉपर्टी जो है बॉडी की क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो इसी डेफिनेशन में जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया की डेफिनेशन में जो वर्ड्स आए हैं उसी के बेसिस पे हम इनर्शिया को 3 पार्ट में कैटेगराइज भी कर सकते हैं। वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये तीनों बातें इनर्शिया की प्रॉपर्टी में हैं। देखिए ना, it is inherent property of a body by virtue of which it remain in the state of rest, एक प्रॉपर्टी आ गई। और यूनिफॉर्म मोशन दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, along the straight line, तो मतलब तीसरी बात आ गई। तो इन्हीं तीनों बातों के बेसिस पे इनर्शिया इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, यू कैन से। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, यानी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो रेस्ट में रहना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, अपने आप ये मूव नहीं कर सकती, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी फॉर एवर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई समझना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है अब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी खुद चलने लगे, है ना। बॉल यहाँ पर रेस्ट में है तो इस पर क्या होता है कि वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और उसका रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करता है। तो n माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब नेट फोर्स 0 है। तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है, वो दूसरी जो इनर्शिया है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वहां पर क्या कहेंगे कि मोशन के बारे में बताएंगे। वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। वो बाय इटसेल्फ द बॉडी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी यू कैन से। वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू मूव करेगी, खुद अपने आप वो न तो एक्सेलरेट हो सकती है न डी एक्सेलरेट हो सकती है, या वो रेस्ट में आना चाहे तो रेस्ट में भी नहीं आ सकती। हाँ, हालांकि ये क्या है कि ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में तो आ जाती है। रेस्ट में क्यों आती है? सभी को मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगने लगता है। कोई ऐसे सरफेस नहीं लिए जा सकते जिनके के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो, तो वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रेस्ट में आ जाती है। अदरवाइज जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बॉल यदि मूव कर रही है तो ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और इसका मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए ये मूव करती रहेगी। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई थी, डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैन नाइदर गेट एक्सेलरेटेड नॉर गेट रिटार्डेड ऑन इट्स ओन एंड आल्सो कैन नॉट स्टॉप ऑन इट्स ओन। तो न तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकती है, न डिक्रीज कर सकती है, न तो रेस्ट में आ सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली थर्ड जो है कैटेगरी इनर्शिया की, वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
इट इज डिफाइंड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन बाय इटसेल्फ। वो अपने आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है बस उसी डायरेक्शन में वो मूव करती रहेगी, अपने आप वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। हाँ, फोर्स लगेगा तो चेंज हो जाएगी डायरेक्शन, तो उसके लिए तो फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज बॉडी की तो टेंडेंसी ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और करती रहेगी फॉरएवर, है ना, इफ इट इज इन मोशन। अब हम बात करेंगे इनर्शिया के मेजरमेंट की। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि एक बॉडी है जिसका मास ज़्यादा है, अनदर बॉडी हैविंग लेस मास। इफ वी ट्राई टू पुश बोथ bodies by applying a force, we observe that the body having less mass require very small force to change its state of rest, and the body having more mass require more force to change its state of rest. इसका मतलब ये हुआ जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी, अपोजिशन की प्रॉपर्टी, अपोज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और जिस बॉडी का मास कम है वो कम अपोज कर पा रही है। यही केस जो है बॉडी मोशन में होता है तो भी होता है। क्या मतलब, एक बॉडी मोशन में है, अब उसको हम रेस्ट में लाने की कोशिश करें, है ना, तो ये डिपेंड करेगा उसके मास पर। ये वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, लाइटर बॉडी है, तो वो कुछ ही फोर्स लगाने पर रेस्ट में आ जाएगी। हाँ, एक हैवी बॉडी है, लार्ज मास की बॉडी है, तो उसको रेस्ट में लाएंगे तो क्या होगा, मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड इन कंपेरिजन टू द लाइटर ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मोर मास द बॉडी हैव मोर इनर्शिया, लेस मास बॉडी विल हैव लेस इनर्शिया। मतलब अपोज करने की प्रॉपर्टी उसमें लेस होगी जब उसका मास लेस होगा, और अपोज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी इफ द बॉडी हैज मोर मास। इट मीन्स मास जो है वही इनर्शिया का मेजरमेंट पार्ट है, और मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है। तो केजी इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की यूनिट किलोग्राम है। अब बात करेंगे दूसरे एक प्रॉपर्टी की जिसको कहते हैं हम लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है? वो किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में मोशन प्रेजेंट है ये उसके लीनियर मोमेंटम से पता लगता है। और लीनियर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को निकाल करके हम क्वांटिटेटिवली जो है लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए मूविंग बॉडी। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम दैट इज लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई द मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट इसी फार्मूले से हम निकाल भी सकते हैं, और यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। और इसी फार्मूले के बेसिस पे हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। मास का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए और वेलोसिटी का लिख दीजिए, तो आपको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला पता लग जाएगा। और सीजीएस यूनिट तो वही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो लीनियर मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में मोशन प्रेजेंट है एंड तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये देखा जाए तो एक्चुअल में ये इनर्शिया को ही जो है डिफाइन कर रहा है, या कहें हम ये लॉ जो है फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन बता रहा है। फोर्स की क्वालिटी क्या है कि बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना, या बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना, यही तो क्वालिटी है
उसका इफेक्ट है फोर्स का, तो उसी को ये एक्सप्लेन करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स, या कहें ये लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया ही है एक तरह से। इसको हम कैसे स्टेट करेंगे अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करिए हमेशा। क्या कि इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस it is compelled by some external force to change its state of rest or uniform motion। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म में कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, है ना। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन unless it is compelled by some external force to change its state। तो this law define the force qualitatively, क्वालिटी वाइज ये फोर्स को डिफाइन करता है ना। तो फोर्स की क्वालिटी मैंने कहा ना क्या है कि उसके बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट से मोशन में लाए, वो क्या है, फोर्स है। या बॉडी जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाए, वो क्या है, कौन लाता है, फोर्स लाता है। तो फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन समझो यहाँ से हमें मिल रही है, या यहाँ पर फोर्स जो है क्वालिटेटिवली डिफाइन किया जा रहा है बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है, मतलब उसकी हेल्प से, सेकेंड लॉ की हेल्प से, न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हम फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तो हम क्वालिटेटिवली समझ सकते हैं फोर्स के बारे में, वहाँ पर हम सेकेंड लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम फोर्स को क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और बहुत ही सिंपल है और लर्न करना भी आसान है। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, या कहें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो सिंपल सी बात है, क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। और यहाँ पर बताया गया दिस लॉ हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली जो है हम फोर्स की वैल्यू आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है m है, फोर्स अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट हमने F सपोज कर लिया, फोर्स अप्लाई किया गया, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है मानते हैं, तो इट्स वेलोसिटी फोर्स अप्लाई करेगा, किया जाएगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फोर्स हम उसके मोशन के डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं, ये मेंशन कर दीजिए। वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाई डेल्टा वी। मतलब वेलोसिटी अब कितनी हो गई है, न्यू वेलोसिटी उसकी हो गई v प्लस डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी उसकी वेलोसिटी में चेंज। अपने वर्ड्स में इसको कैसे भी करेक्ट वे में हम लिख सकते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा उसका, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा वी हुआ, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। और इसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। अब जो इसमें जो कहा गया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है कि द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन, चेंज इन
मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स अप्लाइड, या कहें एक्सटर्नल फोर्स कहना ज़्यादा बेटर होगा, अप्लाइड ऑन इट। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि फोर्स जो अप्लाई किया गया है या वो प्रोपोर्शनल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिएगा कि डेल्टा टी टाइम क्या है? ड्यूरेशन है जिसमें फोर्स अप्लाई किया गया। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज करके करते हैं इक्वल साइन में, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, वही लिया गया है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ी कंडीशन लगा दें, लिमिट लगा दें, तो कैसे लिखेंगे इसको? ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा? डी पी बाई डी टी लिख देंगे हम इसको। सिंस पी इज इक्वल टू एम बी होता है, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के और डी बाई डी टी, और एम बी लिख दे, है ना। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एम डी बी बाई डी टी हो गया, है ना। और डी बी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इस तरह से एफ इज इक्वल टू जो है के एम ए आ जाएगा। ऐसे डी बी बाई डी टी क्या है? लिख दिया हमने, एक्सेलरेशन लिख दिया, है ना। और हम लिखते हैं कि एस आई इन एस आई यूनिट इन एस आई यूनिट के इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू हमें पता लग गई। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं फोर्स का, तो सेकेंड लॉ की हेल्प से। यही बात हमने सेकेंड स्लाइड में लिख रखी है, और इसको आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, है ना। तो एफ इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी, वेर के इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। तो एफ इज इक्वल टू के लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के डी पी बाई डी टी, और पी की जगह पर एम भी लिख दिया गया। तो इस तरह से एफ इज इक्वल टू के एम डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी क्या है? एक्सेलरेशन है, तो एफ इज इक्वल टू के एम ए हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, ऐसा यूनिट में के की वैल्यू है। तो इस तरह से हम आसानी से सेकंड लॉ की हेल्प से फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ यूनिट की। फोर्स जो यहाँ पर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या है? सभी जानते हैं कि फोर्स की एक यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, जो कि एसआई यूनिट है। उसी की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ फोर्स। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और जो हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया था, उसी की हेल्प से हम 1 न्यूटन को डिफाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए आया था। ये एम इज इक्वल टू 1 kg और ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन क्या करता है? 1 न्यूटन जब किसी 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है, तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इसी बात को हम लिख देंगे, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन हो गई। तो सीजीएस यूनिट जो है फोर्स की क्या है? वो डाइन है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो हम वैसे तो जो फार्मूला है उसके बेसिस पे भी एक यूनिट लिखी जा सकती है। भाई क्या है कि एफ इज इक्वल टू क्या है? एम इंटू ए है, मास क्या है? केजी है, और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है फोर्स की यूनिट है। और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन कहते हैं, है ना। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में यूनिट की जो फोर्स की यूनिट है वो डाइन है, और हमें डाइन एंड न्यूटन में रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन जो है हमें कई बार क्या होता है कि कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूटन को डाइन में या डाइन को न्यूटन में। तो वी मस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, दैट इज द 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। और 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ग्राम।
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये CGS यूनिट है। जैसे ये केजी की जगह पर ग्राम लिख दिया, सेंटीमीटर की जगह पर सेंटीमीटर लिख दिया। सेकंड तो यूनिट MKS यूनिट सिस्टम में या CGS यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट तो सेकंड ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह से ये तो जो है फोर्स की यूनिट जो है एक सिस्टम में हो गई। अब देखा जाए एक ग्रेविटेशनल सिस्टम में भी फोर्स की यूनिट हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, और वो है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो उसमें हम MKS CGS की बात करेंगे। MKS सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट। शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं, KG वेट लिखते हैं। KG वेट लिख दिया। और 1 kg वेट जो होता है वो 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, या कहें 1 kg वेट इज इक्वल 9.8 न्यूटन है। इस kg वेट को kg फोर्स भी कहते हैं। तो 1 kg वेट इज इक्वल 1 kg फोर्स, और 1 kg वेट जो है वो क्या होता है, 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहें 9.8 न्यूटन। ये हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए कन्वर्जन के लिए कि 1 kg वेट या 1 kg फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल है। उसी तरह से CGS सिस्टम में क्या होगा कि kg की जगह ग्राम आ जाएगा, और कोई खास चेंज होना नहीं है। तो फोर्स को तो फोर्स ही रखेंगे, ग्राम फोर्स या कहीं ग्राम वेट, वो CGS यूनिट हो जाएगी फोर्स की। तो इन CGS सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम वेट GWT और ग्राम फोर्स GF, और 1 ग्राम वेट या कहें इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहें 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन। और डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का मालूम है कि हमें मास का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और एक्सेलरेशन का लिखना है, तो ये हो जाएगा mL/t-2। इस तरह से ये जो आज का वीडियो है बहुत ही बेसिक वीडियो है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे, एंड लेटर ऑन हम न्यूमेरिकल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे।